Hi, how are you student? Welcome back in my class. This is chemistry class and we here studying periodic classification of elements. Student, in previous classes I have taught you about the Mendeleev's periodic table and Dovenier and Newlands. Okay, so in this class I will teach you modern periodic table, student, and also I will teach you why we make a table, why we arrange the elements in a table. Okay, so let's take an example of your mobile or computer. You have many things in your computer or mobile, okay, like mp3 musics and videos and photos and pdf files, word files and documents, etc, etc. You put many things in your mobile phone or laptops. Okay, so if you will mix all these things, if you mix all these things, how you will find these? You will not take easy to find these files from your laptop or your mobile. Okay, so to overcome that problem, what you will do? You will make folder, mp3 folder, video folder, and different for different cases. Okay, you make different folders because of easy accessibility. You try easy accessibility. Okay, similarly, in this way, the many scientists was trying to make table, why? To easy accessibility, to easy learn. Okay, so in 1993 of 1913 Henry Green Jeffrey Moseley, short name is Henry Moseley, showed that atomic number is better base for arranging in table. Means in previous time Mendeleev was trying in the way of arranging according to atomic mass. They was arranging according to atomic mass. Okay, but in 1913 Henry Green Jeffrey Moseley, means शॉर्ट में आप बोलेंगे हेनरी मोसले, showed that atomic number is better base for arranging in the table. means atomic number आप टेबल में अरेंज करेंगे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को, तो वो बेटर बेस है, उससे आपका अरेंजमेंट बेटर होगा. ये किसने बताया? हेनरी मोसले ने इन 1930. ओके, सून मतलब जल्द ही मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल was modified to form मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जल्दी क्या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कन्वर्ट हो गया, मॉडिफाई हो गया किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. ओके, वाज मॉडिफाइड टू फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मोस्ट ऑफ डिफेक्ट्स गेट रेक्टिफाइड. मीन्स उसमें से बहुत सारे आपको डिफेक्ट्स है, आपने देखे ही थे कि वेनेडियम क्रोमियम का एग्जांपल आपने देखा था. क्या होता था कि लेस एटॉमिक मास वाला बाद में और ग्रेटर एटॉमिक मास वाला पहले रख दिया गया था और मेनी डिफिकल्टीज उसमें हो रही थी. ओके, तो वो उनका बहुत सारे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे मेंडलीव्स में. लेकिन इसमें क्या किया गया, जब आपको अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया. मीन्स जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कन्वर्ट हुआ, यानी कि मेंडलीव्स में से पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न में कन्वर्ट किया गया, तो उसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हुई, दूर हुई. ओके, रेक्टिफाइड. इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ऊपर बताया ही किसके बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर पे, वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ओके, इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स. इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम. वर्टिकल कॉलम जिसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे जो कॉलम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स. इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स. उस कॉलम को क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे. ओके, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड्स. 7 ऐसे जो रोज होंगी ऐसे, ठीक है, वो क्या बोले जाएंगे,
आपको पीरियड्स बोलेंगे। मीन्स आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स होल्ड करता है। कितना क्या बना है? 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ओके, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपका टेबल में ग्रुप और पीरियड्स क्या है। ओके, लेट्स वेट। Student, this is modern periodic table. Okay, and this one here, let's see, this is 1 2 3 4 5 6 7. This is horizontal lines ऐसे, ठीक है, this is horizontal line 1 2 3 4. This is called periods. This 7 is a periods, and like this, see here, groups means this one, this one, this one, this vertical lines. Okay, this vertical columns called group, means 1 to 18. There are 1 to 18 groups and 1 to 7 periods. Okay, तो ये आपका क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हमको इसी के बारे में सब पढ़ना है। ओके, अब इसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Student, next point is it contains metals, non-metals and metalloids. Means the table contains metals, non-metals and metalloids. Okay, and what are metalloids? Metalloids show properties of both metals and non-metals. Means metalloids क्या होते हैं? जो metals और non-metals दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? metalloids. Okay, next point is note atomic number. मीन्स जिसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं ना, अभी आपको बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मीन्स जो एटॉमिक नंबर होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मीन्स जिस एलिमेंट के जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतना ही उसका क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ओके, सो नंबर ऑफ atomic number is equal to number of protons. Okay, next point is every group have elements of similar properties. सभी ग्रुप्स क्या है? ग्रुप्स ऐसे आपके थे, ठीक है, आपके सभी ऐसे ऐसे ग्रुप है हॉरिजॉन्टल 1 2 3। इसमें जो एलिमेंट्स रखे हैं, ठीक, इसमें जो एलिमेंट्स हैं आपका एक ग्रुप में, मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, तो सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी, मैच करेगी। ठीक है, थर्ड में उसे उनकी सबकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। ऐसे इनको पुट किया गया है। ओके, सो एवरी ग्रुप्स हैव एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये आपको क्या थे? पॉइंट्स थे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थे कि मीन्स ये क्या क्या होल्ड करता है, किसके बेसिस पे इसको बनाया गया। ओके, और क्यों बनाया गया है? इजी टू एसेस, इजी टू लर्न, इसके लिए सिर्फ बनाया गया है। आपको पता चल जाए कि इस ग्रुप में इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के, इस नंबर का आपको बता दिया जाए एलिमेंट एटॉमिक नंबर इतना है, तो आप उसको देखकर ही बता देंगे कि इस ग्रुप में रखा गया, यहाँ पे रखा गया। ओके, जैसे आप कोई स्टोर में कोई सामान रखते हैं तो ग्रुप वाइज रखते हैं कि इस टाइप की चीज़ें इधर होगी, इस टाइप की चीज़ें इधर होगी, ताकि आप इजी उसको फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, जाके आपको उसको लाना हो तो आप जल्दी से पिक कर सकें। वैसे ही इसमें आपका टेबल में भी किया गया है, टेबल में बनाया गया। ओके, तो दीज आर पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स आपके जो एक एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स में आपका एटॉमिक नंबर होगा और उसमें आपका सेल होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको समझेंगे। आपको प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है, इसमें भी आपको यूज करना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट आपको 1 to 30 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। ओके, बट आपके बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट 1 to 20 आता है। कितना आता है? मैक्सिमम 1 to 20 आता है, आगे का नहीं देता है। आपके सिलेबस में कितना है? 1 to 20, तो एटलीस्ट 1 to 20 तो आना ही चाहिए। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्या उसका एटॉमिक नंबर है, ओके, कैसा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे,
स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है, इतना चीज आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे राइट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ओके। Our topic is valence electrons. Means what is valence electrons? The valence electrons are the electrons that are located in the outermost shell of an element. Means एलिमेंट्स के जो सेल्स होते हैं KLMN, आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, KLMN क्या होते हैं, सेल होते हैं। जब उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं आप किसी एलिमेंट्स का, तो उसमें जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होते हैं स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल देखेंगे, सोडियम, इजी एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। सोडियम 281, 11 क्या होता है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है। और 281 अगर एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 11 है तो आपका उसका प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगी, अभी अभी बताया था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, 11। आप जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, दिस इज न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11 प्रोटॉन। इसमें लिखेंगे कितना, 11 प्रोटॉन्स, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद कौन सा होता है, के, क्या होता है, के से एल सेल, दिस इज एल सेल, एम सेल, KLM तीन ही है, ठीक है, आगे तो है नहीं, तीन ही तक करते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट 281 कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी बताएंगे कैसे करते हैं। 281 मीन्स फर्स्ट सेल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 कवर है पूरा, ठीक है। सेकेंड में 8 है, 8 कवर कर लेंगे, 8 कवर हो गया। लास्ट में कितना है, ओनली 1, लास्ट में कितना स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक। तो आपको इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, M है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना है, 1, कितना है, 1 है, ओके। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम इज इक्वल टू 1। सोडियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे, ओके। तो ये आपका था। अभी देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। एटॉमिक, आपको एटॉमिक नंबर तो पता ही होगा, हाइड्रोजन से लेके आगे तक, ठीक है, 30 तक कम से कम पता होना चाहिए। आपका सिलेबस में 20 तक है, इतना तो आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ओके। तभी हम लोग इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर आपको प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज इंक्रीज होती है, कैसे कैरेक्टर्स चेंज होते हैं जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट अप डाउन आप रीडिंग करते हैं, ओके। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। और स्टूडेंट एक और चीज़, पीरियोडिक टेबल आपका जो है कितने ब्लॉक्स में डिफाइन किया गया है वो भी बताएंगे। ब्लॉक्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, 4 ब्लॉक में डिफाइन किया गया है, ठीक है। आपको 7 पीरियड्स, ओके, 18 ग्रुप्स, इतना तो बता दिया था, और कितना, 4 ब्लॉक्स, स्टैंड 4 ब्लॉक भी होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं SPDF ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। इसको भी आपको फाइंड आउट करना होता है। इस पर आपको एटॉमिक नंबर दे देता है, ठीक है, एग्जाम में एटॉमिक नंबर दे देगा, पूछेगा कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो उसको आप फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, और आप इजी वे में फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। उसका आपको फॉर्मूला बताएंगे। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इवन प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको इसमें एक बार बताना पड़ेगा, मैं भी भूल गए होंगे, ओके। भूलना स्वाभाविक है ना, हम लोग इंसान हैं, भूलते हैं, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन में आप फॉर्मूला देखेंगे किस बेसिस पे सेल्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अभी बताया कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, सेल में KLMN ऐसे करते हैं, ठीक है। एन के बाद
ओ भी जाता है, पी भी जाता है, बस हमको यूज अभी फिलहाल में कहाँ तक है, एन तक होता है, ठीक है। आगे ओ पी भी जाता है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि इसमें 2 होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें 18 होंगे, कैसे डिसाइड करते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2n²। व्हाट इज फॉर्मूला? 2n²। फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। फर्स्ट सेल के लिए आपको n की वैल्यू क्या रखेंगे? n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल है, यहाँ पे लिख देते हैं n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। मीन जितना सेल आपके एल एम एन क्या सेल है, जिस सेल में आपको पुट करनी है वैल्यू, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स में नहीं फिल किए जाएंगे। तो k में नंबरिंग 1 पे आ रही है, तो n की जब वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 होता है, एंड 2 1 इज 2, मीन्स इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 2 होती है, ओके। और सेकेंड में जाएंगे तो n की जगह क्या हो जाएगा? 2, एंड 2 2 इज 4, 4 2 इज 8। थर्ड में जाएंगे तो 3 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 इज 18 होता है स्टूडेंट। फोर्थ में आप जब जाएंगे तो 4 की स्क्वायर 16 होता है, एंड 16 2 इज 32। जब आप फिफ्थ में जाएंगे स्टूडेंट तो 5 5 इज 25, एंड 25 2 इज 50, मीन्स फिफ्थ सेल में आप टोटल 50 एलिमेंट्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सिक्स में जाएंगे पी में, तो 6 इज इक्वल टू 36, एंड 36 2 इज 72, मीन्स सिक्स्थ सेल में आप मैक्सिमम 72 एलिमेंट्स फिल कर सकते हैं, ओके। बट उतने ज़रूरत नहीं पड़ता उसके बाद, ठीक है, इतने में हो जाता है। तो आप देखिए हमको काम कहाँ तक है स्टूडेंट? यहाँ तक है, हमको यहाँ तक काम है, बस इसके आगे का आपको काम नहीं है, ठीक है। आप इसके बाद नेक्स्ट क्लासेज मीन्स 12th में आप देखेंगे इसको कि कैसे आगे के कॉन्फ़िगरेशन होंगे। डिफरेंट नील्स बोर का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसके बाद आपका अबाउ कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, एक और डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। बट अभी आपको नील्स बोर के अकॉर्डिंग देखना है, तो इस अकॉर्डिंग फिल करते हैं, ओके। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है स्टूडेंट कि पहले के लिए तो नो प्रॉब्लम, 2 है, 2 तक जाएगा। सेकेंड है, सेकेंड में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 फिल होने के बाद सेकेंड में जाएगा, ठीक। थर्ड में जैसे ही आप जाएंगे, ठीक है, रूल होता है 2 तक। कितना तक? 2 तक। 2 फिल होगा, उसके बाद फिर 8 फिल होगा, 8 के बाद चेंजेज होते जाएंगे, 8 के बाद इसमें चेंजेज होते जाएंगे, 2 के बाद चेंजेज होते जाएंगे, ऐसे आपको चेंज करके फिर उसके बाद ये जब फिल हो जाएगा 18 तक, तो इसमें नेक्स्ट में तब तक आप 2 8 फिल करते रहेंगे। तो ये प्रोसेस होता है थोड़ा 20 30 के बाद थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, आप बाउ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ओके। इसको उतना नहीं करते हैं, बट इसके हेल्प से आपको, आप बाउ थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है। ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा छोटा है, इसलिए आपके सिलेबस में है, क्योंकि आपको 20 तक ही पढ़ना है, तो 20 तक आप इससे ईजिली कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका 2 8 18 32, ये लिमिट मत भूलिएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन करना है। एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट का हाइड्रोजन 1 एक ही है, तो 1 फिल कर लेंगे। आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। आप दो एग्जाम्पल, 2 लिथियम का 3 होता है स्टूडेंट, तो पहले में कितनी लिमिट है? ओनली 2 लिमिट है, तो 2 एंड 1 एक बच जाएगा, तो नेक्स्ट में जाएगा 2 एंड 1। हेलियम 4 आपका होगा, 2 एंड 2 4, ऐसे आप फिल करते जाएंगे, ओके। और लास्ट में 24 एंड 1 में 29, ये क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, उसको बताएंगे कि उसको कैसे फिल करते हैं। एक्सेप्शन अक्सर करके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन तो पहले जानना जरूरी है ना, जो चीज़ें अपवाद होती हैं उसको जानना जरूरी होता है, और हमारी क्यूरियोसिटी भी होती है जो चीज़ें एक्स्ट्रा अपवाद होती हैं उनको जानने की, तो हम उसको भी समझेंगे, ठीक है। बट आप यहाँ तक कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। आपको नंबर दिया होगा या एटॉमिक नंबर, आपको एटॉमिक नंबर ओनली गिवन होगा, और उससे आप सभी उस चीज़ की इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो
पूरा नोट्स जहाँ तक बताया हूँ कंप्लीट कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।